Assalamualaikum guys, welcome to another tutorial in which we will explore about the basic commands used in Linux operating system. We will move toward our lab manual number 2, which demonstrate all the basic commands used in Linux operating system. So what is Linux operating system? So Linux and Linux are very similar operating system. Linux is, you can say, the older version, and Linux is the updated version of Linux. Linux is very similar to Linux, and in which Linux is also an open source software. It means that you can easily change and do modification in Linux. As compared to Windows, Linux is like gives you more control over your operating system. You have more control over your security and different options. But in Windows provide a kind of restricted kind of control over your operating system. It doesn't provide much control to the user who's using the operating system. So as compared to Windows, Linux is better. Like you can do modification in this, and it's really easy to use as well. Okay, so we will learn about the basic commands. Let us go through the first command. So for Linux operating system, we will be using Ubuntu VMware, which I've already installed on my computer, and you have to install it in order to use it. So this is the Ubuntu, and we will be. Let me split the screen so I can write the commands and I can show you how they work. Okay, so echo. Echo command is used for outputting any sort of information. If you want to display your name on the screen, if you want to display some sort of a sentence on the screen, you can use echo and then any sort of sentence. For example, I will be displaying my username, that is Jasya Mubashir. So you can see this is my name is displayed. So the next command is who command, that is basically used for, let me a minute. Who command is used to display your login name, date, time, and terminal as well. You can see here Jasya, the terminal name, date, and time as well. Okay, so next command is how me. So how me command is used to display your username only. So you can see that my username is displayed. Uptime, and the next command is uptime. So uptime, what is uptime used for? Uptime basically shows the time that the computer has been like running since the last reboot, or you can say last startup, or last power off. Like if I'm going to press enter, you can see that it is giving me time, the amount of minutes I have been using my laptop for since the last power off. Okay, so the next command is uname. What is uname command used for? Uname is used to display software hardware information. It will provide me the operating system name, like it is providing me Linux. So another command you can use to see more information about your operating system is uname. You can say -a. So it also gives you that the user who is using the Linux operating system and the version of Ubuntu as well. Okay, and date and time and everything, and also the architecture of your CPU, like 86 into 64 bits. ठीक है, फिर हमारे पास अगली जो कमांड है इसमें है होस्ट नेम की कमांड हमारे पास करेगी, वो होस्ट का नेम डिस्प्ले करवा देती है जो कि Ubuntu यूज कर रहा होगा, होस्ट नेम जासिया. ठीक है, अब हमारे पास अगली कमांड है, वेरी सिमिलर टू dir कमांड व्हिच वी हैव बीन यूजिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपने अपनी डायरेक्टरीज को लिस्ट करवाना है, अपने फोल्डर्स को, अपने फाइल को लिस्ट करवाना है, हमारे पास ls कमांड है. उसके बहुत सारे वर्जंस हैं जो कि डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं. आपको दिखाऊंगी अभी फिलहाल हम लेते हैं ls की कमांड के तरीके से भी हमारे पास फोल्डर्स हमारे पास सामने आ गए. ठीक है, अब हम लोगों ने अगर हम लोगों ने फाइल की स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करनी है, ls you can say -1. अभी हमारे पास फाइल्स वर्टिकल में आ गई हैं, जो ls अगर करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में आती हैं. फिर हमारे पास होती है lst. अगर हम लोग lst करेंगे जो जिस टाइम पे वो फाइल क्रिएट होगी उस लिहाज से वो सॉर्टिंग में आपको फाइल शो करवाएगा. आप देखें हमारे पास सॉर्टिंग में फाइल शो हो रही है. फिर हमारे पास होती है ls u की कमांड भी हमारे पास होती है एक्सेस बाय टाइम, सॉर्ट एक्सेस बाय टाइम. एक्सेस टाइम साथ इस टाइम पे अपनी फाइल को एक्सेस किया होगा उस लिहाज से आपको फाइल देगी. फिर हमारे पास होती है ls. ऐसी कमांड की हमारे पास यूज होती है, हमारे पास यूज होती है साइज, जो साइज होगा जिस फाइल का, जिस फोल्डर का, वो साइज उसको दिखाएगी. ठीक है, फिर हमारे पास होता है lsr की कमांड. lsr की कमांड हमारे पास जो रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास होगा ना, वो हमारे पास शो हो जाएगी. एक मिनट में ये देखिए हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास फाइल शो हो गई हैं. फिर इसके बाद हमारे पास होती है lsf की कमांड. ls ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास होती है ls f की कमांड. ये हमारे पास क्यों होती है, जब भी अगर हम लोगों ने कोई भी डायरेक्टरी शो करवानी है, जो सिंबॉलिक लिंक्स इसमें होंगे, @ यूज हुआ है, स्टार यूज हुआ है, फिर इक्वल टू डॉट से स्टार्ट हुई हैं, वो सारी फाइल्स हमारे पास हो जाएंगी, स्पेशल कैरेक्टर से बनेंगी. ठीक है, फिर हमारे पास होती है ls h की कमांड की हमारे पास करती है ह्यूमन रीडेबल, जो हमारे पास होती है ना फाइल मेगाबाइट्स किलोबाइट्स में, वो हमें शो करवा देगी. ठीक है, फिर हमारे पास होती है अगर हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक फाइल शो करवानी है, लेट्स से हम कहते हैं कि हमें वो फाइल चाहिए जो लेटर ए से लेकर लेटर जे तक हमारे पास बनी हुई हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ls. आपने ब्रैकेट डालनी है, आपने जिस लेटर से स्टार्ट करना है, लेट्स से मैं ए से कहती हूँ, ए से लेकर एम तक, और आपने उसके ब्रैकेट क्लोज करके स्टार्ट आ जाए. ठीक है, हमारे पास जितनी फाइल्स होंगी जो इन लेटर्स के दरमियान में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनके नेम से स्टार्ट हुई हैं, वो सारी हमारे पास हो जाएंगे. मैंने स्पेसिफिक एक फाइल शो करवानी है, लेट्स से lsf शो करवानी है, मतलब जिसका नाम f से शुरू होता हो, तो मैं ऐसे लिख दूंगी हमारे पास. अब वो कह रहा है कि नो सच फाइल, हमने कोई ऐसी फाइल डायरेक्टली बनाई नहीं है जो f से स्टार्ट होती है, तो इट्स ओके. अगर आपने कोई और बनाई होगी तो वो शो हो जाएगी. अगली हमारे पास जो कमांड है, कमांड नंबर 8, जो कि है pwd. अगर हम लोगों ने ये शो करवानी है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कमांड pwd की. pwd आपको आप जिस डायरेक्टरी में काम करें वो आपको वो डायरेक्टरी शो करवाएगी. मैं आपको करके बताती हूँ. देखिए मैं हूं अभी होम, और होम के अंदर जासिक फोल्डर है उसमें. ठीक है, उसमें ये सारा काम हो रहा है. फिर हमारे पास एक और कमांड है क्लियर की. ये इट इज वेरी सिमिलर टू cls व्हिच वाज यूज्ड इन विंडोज में हम cls यूज करते हैं, लिनक्स में हम क्लियर यूज करते हैं. ये हमारे पास क्या होगा, जितना भी हम लोगों ने कंटेंट स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो कि टर्मिनल की स्क्रीन पे है, वो जब हम लोग क्लियर करते हैं तो हमारे पास एक फुल स्क्रीन क्लियर हो जाएगी. लेट मी एंटर. देखिए हमारे पास जितनी भी कमांड्स थी वो हमारे पास सारी क्लियर हो गई हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक और कमांड होती है cp कमांड. cp कमांड होती है कॉपी फाइल. लेकिन कॉपी फाइल करने से पहले आपको ये पता चाहिए कि हम लोग फाइल बनाते कैसे हैं. जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हमारे पास फाइल बनती है टच फाइल का नेम file1.txt. एंटर किया, हमारे पास फाइल बन गया. फाइल बनी है नहीं बनी वो देखना पड़ेगा. लेकिन file.1.txt बन गई है. ठीक है, अब हमारे पास एक और कमांड है, इसमें कुछ राइट कर लेते हैं आई थिंक सो. जैसे फॉर एग्जांपल लिखती हूँ माय नेम इज जासिया मुबशर. ठीक है, मैंने राइट कर दिया. अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगी, इसको मैं बंद कर दूंगी. ठीक है, अब हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं. वापस एक और फाइल हम बनाएंगे, हम लोगों ने कॉपी करनी है एक फाइल दूसरी फाइल में, तो हम लोग एक और फाइल बनाते हैं file2 के नाम से. ठीक है, हम ये यूज करेंगे टच file2, और लिखा तो जा नहीं रहा, टच file2.txt. एक और फाइल बन गई. ठीक है, हम लोगों ने करना है हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने फाइल को कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे cp, जबकि फाइल का नेम होगा file1, और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर file2. ठीक है, आपने इसको एंटर कर देना है. कैन नॉट स्टार्ट file1 मूव सच फाइल और डायरेक्टरी, बिकॉज आई थिंक मैंने txt नहीं लिखा. एक मिनट, एक फाइल के नेम से है, इसको file1 जो है इसमें तो सेव है. ठीक है, अच्छा ठीक है, अब टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ पे cp file1.txt file2.txt. ठीक है, एंटर करें. अब हमारे पास कॉपी होगी मैंने file1 को file2 में कॉपी किया. देखते हैं क्योंकि आपको पता file2 में कुछ राइट तो किया ही नहीं था, जब कुछ राइट ही नहीं था, मतलब वो एम्प्टी थी, अब ये कॉपी हो गया, वही सेम जो मैंने file1 में किया था. तो इसमें हमारे पास कॉपी कमांड होती है. ठीक है, और हमारे पास अगली कमांड है कैट कमांड. ये हमारे पास कैसे यूज होती है, जो कैट की कमांड होती है, सिंपली अगर आपने अपने आउटपुट दिखानी है, कंटेंट दिखाना है किसी भी फाइल का, तो आप कैट की कमांड यूज करेंगे. लेट्स सी कैट, हमारे पास है, लेट्स से करें file1.txt.
यहाँ पे एक मिनट, कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अभी मैं एंटर करी हूँ और मैंने स्पेलिंग लिख दी है फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अब देखें जो भी कंटेंट लिखा हो तो स्पेसिफिक फाइल में वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। माय नेम इज जैसे मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग, हमारे पास होती है एमवी कमांड। एमवी कमांड क्या करती है, आपने फाइल को रीनेम करना है या इवन अपनी फाइल को मूव करना है तो आप एमवी कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एमवी आपने एमवी कमांड लिखनी है। एमवी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल वन डॉट टी एक्स टी को एलोहा डॉट टी एक्स टी करना है तो मैं इस फाइल दूंगी, मैं एंटर प्रेस करूँगी, यहाँ बस फाइल का नेम चेंज हो गया होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फाइल टू है लेकिन फाइल वन जो है उसकी जगह लोहा हो गया, ठीक है। तो फाइल का नेम चेंज हो गया। अगली जो हमारे पास है, जो हमारे पास कमांड है वो है आरएम। आरएम की कमांड करके आपने किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो आप आरएम की कमांड यूज करते हैं, रिमूव होता है तो आरएम शॉर्ट है उसका। आरएम लिखकर आपने जो फाइल का नेम है वो लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं करूँगी एलोहा आरएम एलोहा डॉट टी एक्स टी, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे एलोहा की फाइल थी वो डिलीट हो गई है। अब आपने दोबारा यहाँ पे जाना है और अब जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास है टच कमांड। टच कमांड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बट लेट मी डेमोंस्ट्रेट इट वन मोर टाइम। आपने टच लिखना है जगह पे आपने फाइल का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नेम लिखूंगी जासिया प्रैक्टिस प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन होती है फाइल की, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है तो मैंने ये लाजमी डालनी है कि आपने फाइल बनानी है, ठीक है। मैंने बना दी, अब मेरे पास यहाँ पे फाइल बनी हुई जासिया प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी के नाम से, ठीक है। अब हमारे पास आपने दोबारा वापस आना है। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डेट कमांड। जो डेट कमांड है वो डिस्प्ले करती है करंट टाइम को भी और डेट की भी। अब डेट कमांड में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, आपने किस तरह से डेट डिस्प्ले करवानी है। आपने अगर सिर्फ मंथ डिस्प्ले करवाना है उसके अलग है, आपने डेट डिस्प्ले करवाना है उसके अलग है, बिल्कुल अलग से। और अगर आपने ईयर डिस्प्ले करवाना है उसके लिए अलग कमांड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी तो एक मिनट, डेट। अब आप डेट जब देखेंगे तो आपकी उर्दू में भी लिखी आ रही है डेट और आपका इंग्लिश में भी लिखी आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि डेट अगर आपने एंटर करवाना है लेकिन आपने मंथ भी लिखना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप लिखेंगे प्लस मॉड्यूलस का ऑपरेटर और एम। अब मैं एंटर करूँगी, मेरे पास सिर्फ जो आज की डेट है जो कि 5 तारीख है वो हमारे पास डिस्प्ले होगी, ठीक है। अगर आपने अपना डिस्प्ले करवाना है मंथ का नेम तो आप वो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, आपने लिखना है डेट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर और आपने लिखना है एज। आपका मंथ का जो नेम होगा वो डिस्प्ले करवाएगा, जैसे मई है वो उर्दू में डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अगर आपने डेट ईयर डिस्प्ले करवाना है तो प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर और आप लिखेंगे वाई, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास ईयर है 24 वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने डिस्प्ले करवाना है डेट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर और अगर आप डी लिखते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा मंथ, लेकिन सॉरी डे डिस्प्ले करवाएगा, आई एम सो सॉरी, डे डिस्प्ले करवाएगा। जो एम था वो मंथ के लिए था। फिर हमारे पास होता है डेट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर और अगर आपने कैपिटल ई लिखते हैं तो आपके पास जो आवर होता है वो डिस्प्ले होता है 18 आवर अभी हो रहा है, ठीक है। अगर आपने करना है डेट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर आप लिखते हैं कैपिटल एम तो आपके पास मिनट डिस्प्ले होंगे, मिनट्स अभी हो रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा यहाँ पे ये हो रहा है 5:56, ठीक है। फिर हमारे पास होता है डेट प्लस मॉड्यूलस ऑपरेटर और हमारे पास होता है सेकंड्स के लिए कैपिटल एस, ठीक है। अगर आप यहाँ करेंगे तो आपके पास सेकंड्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि 18 सेकंड्स हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डेट कितने फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपको बता दी। अब हम अगली वाली पे चलते हैं जो कि होती है सीएल। सीएल किस चीज़ होती है, अगर आपने अपना कैलेंडर डिस्प्ले करवाना है तो आप सीएल की कमांड यूज करते हैं, सीएल। अच्छा अभी यहाँ पे लिखा रहा है कि जो कमांड है इंस्टॉल नहीं है अभी लिनक्स पे, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका यह है कि आप देते हैं sudo apt और ncl, या आपको खुद ही बता रहे हैं सिस्टम, यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे या फिर पासवर्ड आपसे मांग रहे हैं आपके उबंटू का। एक मिनट लिख नहीं रहा। अब हम देखते हैं सीएल कमांड अगर यूज होती है अभी भी इंस्टॉल नहीं हुई। ये कमांड इंस्टॉल भी नहीं हुई और आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन ये सीएल कमांड ही यूज होती है अगर आपने अपना कैलेंडर डिस्प्ले करवाना है। फिर हमारे पास क्लियर की दोबारा कमांड हो रही है, मैं क्लियर वैसे भी करने लगी थी लेकिन दोबारा हो गई, लेट्स डू इट। और जितना भी कंटेंट होगा वो रेज हो जाएगा। अगली कमांड है एग्जिट। एग्जिट की कमांड होती है कि आपने अपना शेल ही बंद कर देना है, मतलब कि वीएम या फिर जितना भी स्क्रीन है यूबंटू के, आपने वो बंद कर देंगे तो वापस क्लियर की सॉरी एग्जिट की कमांड होती है। लेकिन अभी कुछ कमांड्स रहती है तो मैं वो जो कर लूंगी तो मैं आपको एग्जिट की कमांड यूज करना सिखाऊंगी, ठीक है। अगली अगली हमारे पास कमांड है हेड एंड टेल की। हेड एंड टेल की कमांड हमारे पास कैसे यूज होती है, अगर आपने अपनी फाइल के अंदर अगर आपने फाइल बनाई है उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं कुछ लाइंस हैं, अगर आपने वो शो करवानी है तो आप वो शो करवा सकते हैं। और फर्स्ट 10 लाइन आपको शो होती हैं अगर आपने हेड की कमांड यूज की। और अगर आपने टेल की कमांड यूज की तो वो लास्ट 10 लाइन से बिल्कुल ऐसे हेड क्योंकि पहले आता है तो फर्स्ट 10 लाइंस एंड टेल उनके नीचे होती है तो काइंड ऑफ लाइक लास्ट 10 लाइंस आपको होंगी, क्योंकि आपकी फाइल में एटलीस्ट 10 लाइन होनी चाहिए। तो मैंने जो फाइल बनाई हुई जो फाइल 2 थी उसमें मैं ना 10 लाइंस कर देती हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी इट, कॉपी करके मैं इसको 10 दफा पेस्ट कर दूंगी। आई थिंक मेरा यूबंटू स्टॉक हो चुका है, फॉर सम रीजन यूबंटू स्टॉक हो गया गाइस। वेट अ मिनट, मुझे बंद करना पड़ेगा, मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ। मैं इसको दोबारा ऑन करने लगी हूँ। पी एम वेयर वर्क स्टेशन यूबंटू प्ले द वर्चुअल मशीन और यहाँ पे ये ओपन हो गई है। समटाइम्स यूबंटू जो है बिकॉज मेरे पास प्रो तो नहीं है तो इसलिए कभी कभी इसमें मसला हो जाता है, अक्सर स्टक हो जाती है स्क्रीन इसकी, तो इसको पावर करके दोबारा करना पड़ता है। ओके गाइस आई विल जस्ट डेमोंस्ट्रेट। अच्छा सर हमारे पास जो कमांड है वो सॉर्ट की कमांड है। सॉर्ट की कमांड हमारे पास यूज होती है हम लोगों ने अल्फान्यूमेरिक ऑर्डर में अपनी लाइंस को जो हमारे पास होंगी फाइल में अगर हम लोगों ने शो करवानी है हमारे पास सॉर्ट की कमांड होती है, ठीक है। मैं आपको इसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। ये बंद तो हो रहा है यहाँ पे हमारा कंट्रोल ऑन। ओके टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम अपना। अच्छा मैं आपको फाइल का बताई थी कि फाइल में हमारे पास लाइंस होनी चाहिए।
एंटर करेंगे। इसको मैंने कॉपी करना था, कॉपी करना था, कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको बस पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लाइन्स होनी चाहिए जो हमारे पास ताकि हमें शो हो सकें। ठीक है, इतनी मैंने सेव कर, मैं इसको सेव कर लूँ फाइल को और हेडिंग टेल कमांड की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग टेल कैसे काम करती है, आपकी जो भी फाइल होगी आपने उसका आपने पहले हेड लिखना है तो उसकी फाइल का नेम लिखना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है हेड, फाइल का नेम था file2.txt। एंटर करूँगी तो मेरे पास फर्स्ट 10 लाइन्स होंगी वो शो हो जाएंगी। मैं आपको लास्ट 10 लाइन्स शो करवाती हूँ। टेल file2.txt। अब इसकी लास्ट 10 लाइन्स हमारे पास शो हो रही है, आपको पता लगे बिकॉज मैंने वीवी भी लिखा था जो कि अब हमारे पास पता लगे दोनों में डिफरेंस किया। ठीक है, अगली कमांड जो हमारे पास वो है सॉर्ट कमांड। सॉर्ट कमांड आपको बताएगी कि अल्फा न्यूमेरिक में अगर आपने अपनी लाइंस को शो करवाना है तो आप सॉर्ट कमांड यूज करते हैं। लेट्स सी कि हम लोग लिखते हैं सॉर्ट file2.txt। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास जो होगी शो हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जैसे माई पहले आता है, एम पहले आता है, वी बाद में आता है, हमारे पास स्टार्ट अल्फाबेटिकली हमारे पास शो होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगली कमांड है, इसी में सॉर्टिंग में एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपने सॉर्ट करना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो आप यूज करते हैं सॉर्ट फाइल का नेम file2.txt और -r जो अब देखना रिवर्स ऑर्डर में शो हुई है। ठीक है, अगली हमारे पास कमांड होती है ग्रेप की कमांड। ग्रेप कमांड क्या होता है कि हम लोगों ने प्रिंट करवानी है लाइन फाइल में से या फिर इनपुट करवानी है कुछ हम लोगों ने, तो हम लोग ग्रेप ग्रेप यूज करते हैं। ग्रेप क्या होगा, अगर हम लोग लेंगे ग्रेप, एक मिनट, ग्रेप file2.txt और इसको मैं एंटर करती हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास वो है mkdir। mkdir क्या होती है, बिल्कुल वैसी जैसे हम लोग md की कमांड यूज करते थे। अगर आपको फोल्डर बनाना है ubuntu पे या फिर लिनक्स पे तो आप mkdir की कमांड यूज करते हैं। mk मैं यहाँ पर देखती हूँ, एक मिनट, mkdir प्रैक्टिस प्रैक्टिस टास्क, प्रैक्टिस टास्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि आ भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे लेट मी रिफ्रेश इट, अभी ये नहीं बना, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, एक मिनट। मैं टर्मिनल को बंद करके मैं दोबारा करूँगी बिकॉज मेरे पास जो है वो वापस नहीं आ रहा उसका पाथ। mkdir प्रैक्टिस टास्क, अब मेरे पास बन गया होगा, आप देखते हैं mkdir प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर बन गया। ठीक है, ये अब हम लोग जाएंगे वापस, हमारे पास अगली कमांड होती है rmdir। rmdir हम लोग किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम लोग करते हैं rmdir। लेकिन जो rmdir है वो हमारे पास अगर तो डायरेक्टरी एम्प्टी है वो तब काम करेगी, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो rm हम यूज करते होते हैं rmdir। तो इसमें हम लोग लेंगे प्रैक्टिस जो हम लोगों ने बनाई थी, मैं उसी को डिलीट कर रही हूँ। हमारे पास रिमूव हो गई होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टरी रिमूव होगी बिकॉज एम्प्टी थी। अगर अगर तो आपके पास एम्प्टी नहीं है तो आप जो है क्या कहते हैं अगर आपने अगर एम्प्टी नहीं है तो पहले आपको कंटेंट इरेज करना पड़ेगा। उसमें कोई फाइल बनी है, उसमें कोई फोल्डर में, तो पहले फोल्डर को डिलीट करेंगे उस फाइल को, उसके लिए कुछ अलग ऑप्शंस भी हैं लेकिन उसके लिए पहले मैं बनाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ mkdir प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर मैं एक और बनाऊंगी mkdir प्रैक्टिस स्लैश जासिया। अब मैं देखिए बना कि नहीं बना, ये देखें प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस जैसे दो फाइल बनी है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप कहेंगे rmdir प्रैक्टिस, डिलीट हो जाएगा, और rmdir प्रैक्टिस डिलीट हो जाएंगे आपको उसका फोल्डर, दोनों फोल्डर डिलीट हो गए। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है cd कमांड। cd कमांड क्या करती है, आपने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आपने मूव करना है तो आप cd कमांड यूज करते हैं। हमारे पास क्या होगा cd कमांड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ cd, कोई भी लेक्चर कोई फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे बस dir का एक फोल्डर बना, मैं cd dir, मैंने dir मूव करना, dir के अंदर मूव कर दूँगा। अब आप जब मूव कर रहे हैं तो अब आप इसमें कोई फाइल बना सकते हैं, इसके अंदर फर्द फाइल बना सकते हैं, फर्दर कोई आप इसके अंदर आप कोई कहते हैं फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली कमांड है वो हमारे पास है लेस की कमांड। लेस की कमांड क्या कहती है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है the less command comes in handy when a file is really big and when a command output is long and scrolls off top of the screen to page through file like। अब अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है ना, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो क्या होता है आपका टॉप नहीं नजर आता आपका फाइल का, बिकॉज जो हमारे पास जो आउटपुट टर्मिनल स्क्रीन होती है हमेशा लास्ट पे कर्सर रहता है, कर्सर ऊपर नहीं होता। तो अगर आपने बहुत बड़ी फाइल को छोटा शो करवाना है तो आप लेस की कमांड लिखते हैं और आपने जो भी फाइल होगी ना आपकी, वैसे मैं मेरे पास कोई फाइल यहाँ पे बनी हुई है, अगर तो file2.txt की बात कर लेते हैं, file2.txt। अब अगर मैं अभी लिखती हूँ हमारे पास नो सच फाइल, फाइल नहीं है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है वो उसको देख लेते हैं। लेस कमांड स्लैश usr स्लैश sorry forward slash है lsr forward slash usr forward slash share dict and words। आप एंटर करेंगे तभी भी कोई हमारे पास फाइल या डायरेक्टरी नहीं है इस तरह की। ठीक है, मैंने बनाई नहीं है, लेकिन लेसी कमांड तभी यूज करते हैं अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है, उसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने तो फाइल का शो करना है तो लेसी कमांड यूज करते हैं। ठीक है, मैन कमांड किसी होती है, मैन ls, ये यहाँ पर करेगी मैनुअल पेजेस जो होते हैं आपकी फाइल के अंदर वो आपको शो करवाएगी। ये देखिए जितनी मैनुअल पेजेस है ना, ऑथर्स के, ब्लॉग साइज, नो बैकअप्स, ये हमारे पास सारे शो हो रहे हैं, क्लासिफाई, फुल टाइम, ये सब जो है हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, मैनुअल पेजेस शो होते हैं, आपको लिखा भी आ रहा है और दिखा रहा है क्यू टू किट, तो मैं क्यू दबाऊंगी तो वापस मैं क्विट कर जाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास अगली होती है wc कमांड। wc कमांड करके आपने अपनी फाइल के अंदर लाइंस को रीड करना है, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर मतलब कि एक वन वर्ड है उसके अंदर, तो उसको काउंट करके देगा। अब बस wc कमांड कैसे होती है, wc आपने एक मिनट, wc आपने wc -1 बल्कि wc -l और फाइल का नेम भी लिखते हैं, wc -l। फाइल का नेम हमारे पास ऐसे file2.txt बनी हुई है, उसमें हम लोग शो करवाते हैं। यहाँ पे ये इसको नहीं करवा रहा, एक मिनट का है, मैं क्लोज टर्मिनल, आई विल ओपन अगेन, ओपन टर्मिनल, और मेरे पास फाइल बनी थी उसका नाम है, तो देखूँ इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक हो गया, wc file2.txt। ठीक है, मैं एंटर करूंगी तो 21 इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 21 हमारे पास लाइंस हैं, अगर हम लोगों ने सॉरी लाइंस हैं, कैरेक्टर्स नहीं लाइंस हैं। अगर आप लोगों ने wc
W लिखेंगे तो उसका मतलब वर्ड्स, ठीक है, फाइल 2.txt। हमारे पास जितने वर्ड्स होंगे 97 वर्ड्स फाइल के अंदर, आपने शो करवाने इसी तरह कितनी लाइन कितनी कितने कैरेक्टर्स हैं, WC-C करके कैरेक्टर और फाइल 2.txt लिखेंगे। तो अगर आप एंटर करेंगे तो आपको जितने भी कैरेक्टर्स फाइल में 517 कैरेक्टर्स हैं वो शो हो जाएंगे। अगर आप WC सिर्फ फाइल का नेम लिखते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर लाइन, उसके अंदर वर्ड्स, उसके अंदर कैरेक्टर साथ आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अगली हमारे पास आउटपुट रिडायरेक्शन टू सेंड, हमारे पास ये कमांड्स हैं, हमारे पास 27 कमांड्स हैं कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी जो हम लोग इस पे कमांड यूज करें, एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।